Hello everyone, welcome to the Prep B. And in this series, like you can see, 100% CAT syllabus and 100% free. So it is a true. Like we are providing the complete syllabus to all the CAT 24 aspirant for a free. And who am I? I am Sumit, CAT 2023 99.02 percentile in DILR section. And basically, to be honest, in this series, what we actually going to cover, हम सिंपली पहले आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे बेसिक से. Okay, and then we will move forward to take advanced level questions. Okay, and this is all for free of cost. We are not going to charge any a rupee. Okay, so just let me know how many of you are a cat 24 aspirants and how many of you are repeater or just it was a first attempt. Just do let me know in the chat box. Okay, 2024, but Rejoice Patel, Avneet first attempt, Shubham 2024. Okay, Anshu. It's your first attempt, Shubham, Anshu. Okay, Shubham, it's your second attempt. That's great. Okay, you are working. Oh, wow. Keep working. Don't left your job right now. Seeing the market scenario, I would suggest the same. This thing. Okay, Rejoice, it's your first attempt. That's great. So, guys, those who have a second attempt or a third attempt, I believe आपको जो बेसिक पार्ट उतना तो पता होगा क्या होता है एग्जैक्टली. ओके, अंशु का भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, चलो बढ़िया है. बट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्हें थोड़ा इशू आता है, एंड बिकॉज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. देर आर लॉट्स ऑफ फ्री मटेरियल, आई अग्री. बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे इन एवरी ग्रुप, इन चैनल्स. यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ. ओके, फ्रेशर थर्ड अटेम्प्ट अनिल. ओ, थर्ड अटेम्प्ट है, फ्रेशर हो, थोड़ा दिक्कत है अनिल आपका तो. ओके, सो मटेरियल तो बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू परस्यू, आगे कैसे जाना है. दिस इज द इशू. So we are trying to resolve all the issue in these sessions. Okay, you can attend all our free session, live sessions, which is free for all. Anyone can join. You can come with your friends also, and you can share the link to your friend in upcoming sessions. कि चलो भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कर लो, फायदा हो जाएगा. And the flow of the session, let's come to the flow of the session, how this session, today's session going to be. So I'm not going to be take a hardcore like a LRD assets in this session, because it was the first session. And to be honest, I would like to try to like so resolve some myths and burst. Like you can see in it groups also, बहुत सारे लोग रहते हैं 50 सेट डेली के कर लो, महीने के इतने कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो सारे क्वेश्चन हम अभी करेंगे. तो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद कैट 2024 और 2023, एंड जो पास्ट ईयर कैट से कैसे थे, क्या थे. विल गो विद इंट्रो पार्ट. देन वी विल गो विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देन वी विल solve some sets related to the today's topic. उसके बाद we will take a Q&A. Okay, and the Q&A part will not going to be recorded. So those who are watching a recording, आपको Q&A part नहीं मिलेगा. Maybe there are one or two question you will get in a Q&A, but उसके से ज़्यादा हम Q&A will like to take the Q&A part to be a secret. जो भी है डाउट्स है सब हम सॉल्व करेंगे. It's how your personal and anything else related to your work ex and the CAT prep will solve all the doubts, and it will not going to be in a recording. So guys, those are watching, आपको भी अगर join करना, you can simply go to our channels and you can enroll into our course also. We already have given it in a course, you can enroll into it. Okay, उसके बाद जो हम रहेगा, there are some you can see some कुछ हमारे तरफ पे है आपके लिए. You can see, you if you want to like to get that benefit, you can enroll into it. So these are the things we are going to provide right now. तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो बेसिक से. Okay guys, if anyone have any doubt, you can ask in a comment. There is a Mayank who is going to moderate the comment section. He also 97 percentile in CAT 23, and he is also going to answer your queries in the chat box. Apart from him, at the end of the session, I will definitely take all the queries personally. Okay, तो चलो start करते हैं. So basically, like I would like to start with a CAT 2023. जिसने जिसने दिया है या फिर किसने सॉल्व किया हो CAT 2023, तो आई बिलीव you have seen
the sets of the CAT 2023, which is really very different as compared to the previous CAT years. आपने अगर देखा हो in 2023, यार sorry for my bad handwriting. Okay, so in CAT 2023, if you have seen, the flow of the sets are like there are 4 sets in LRDI. Okay, and अब यहाँ पे क्या है ना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एग्जैक्टली कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करके कितना परसेंटाइल मिलेगा, इट्स ऑल डिपेंड्स. हो सकता है कभी 2 क्वेश्चन पे ही आपको 90 प्लस चला जाए. ठीक है, तो वो सब बातें मैं नहीं करूँगा. आप देख सकते हो पास्ट ईयर ट्रेंड्स क्या था, बट या कैट 2023 में जो हुआ है दैट मैं 99 परसेंटाइल की बात करूँगा. 99 परसेंटाइल यू विल टच ओनली सॉल्विंग 8 क्वेश्चंस. Okay, the first slot it is 8 question. In a second slot it might be around okay 8 question जो था ये. This is the first slot S1. Okay, S2 की अगर बात करते हैं हम second slot की, तो second slot में it is around 9 question, and similarly for slot 3 also. Slot 3 में भी आपके 9 questions अगर आपने solve किया है, you are touching a 99 plus definitely for sure. तो ये सब बात होगी. अब जो सेट्स होते हैं आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लाइक आप जो दोज वर फॉलोइंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेस, दैट्स ग्रेट. आप तो मैं तो बोलूँगा बढ़िया से फॉलो करो, पैसे इन्वेस्ट किया वहाँ पे, अच्छे से कर लो, सारे डाउट्स क्वेश्चन वो सॉल्व कर देंगे. ठीक है, बट दो जिसका नहीं है, जो जस्ट आर प्रिपेयरिंग विथ अस, बहुत बढ़िया है, हम करेंगे सॉल्व. ओके, तो नाउ इन 2023 व्हाट आई सीन, एकदम से चेंज हो गया. लोगों ने सोच के गए थे कि इस बार का एलआरडीआई लाइक एलआरडीआई समथिंग बहुत टफ रहता है हर कैट में हो. दो कैट 2023 की बात कर रहे हैं हम, या कैट 2022 की बात करो, जब आप वहाँ पे बैठते हो ना, यू सी द 4 सेट्स विच इज़ अ वेरी रियली हॉरिबल सेट्स. तो आपको आता है करना तो बहुत बढ़िया. आई एम नॉट लाइक इवन दो आई वॉज नॉट इन दैट सिनेरियो, मैं भी 2023 में जब मैं बैठा था अटेम्प्ट करने, आई वॉज लाइक यार ये कैसे सेट्स हैं, इतने मॉक्स मैंने सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने पेपर सॉल्व किए, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस सेट्स. सो रीजन बिहाइंड कि हम क्या सोचते हैं, इफ़ आई सॉल्व दिस काइंड ऑफ सेट्स, ठीक है, अगर मैं S1 सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे यही सेट से सिमिलर सेट कैट में मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है. आप बहुत से लोग ने सुना होगा कि यार अरेंजमेंट पढ़ लो, एक सेट तो अरेंजमेंट का आ जाएगा. यार जस्ट सेकेंड, सुना ही होगा आपने, इफ यू आर टाइपिंग द चैट बॉक्स, आई एम अनेबल टू सी द चैट्स बट स्टिल. तो आपने ये भी सुना होगा कि अगर एक सेट कर लिए तो यू विल गेट so you will find the all the sets like एक सेट कर ले 99 प्लस हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट. वो आइडिया सेम मैं भी अप्लाई करता हूँ. ओके, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नया करके जा रहा हूँ, मैं भी आपको वही बोलने वाला हूँ. द मोस्ट फोकस इज योर फोकस शुड बी ऑन अ वन सेट. ऐसा नहीं अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहे, स्टिल योर फोकस शुड बी अ वन सेट ओनली. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. बाकी को मानना हो मत मानो भाई, सबका अपना अपना स्टडी रहता. आई ओनली फोकस ऑन वन सेट. वन सेट, 5 क्वेश्चन शुड बी डन इन वन गो, दैट्स इट. ये आपने कर लिया, यू इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल गो फॉर अ सेकंड सेट आल्सो. ठीक है, अब हुआ क्या मेरे साथ कि मैं अपनी ये बता रहा हूँ, मैंने जब सेट्स देखा, आई वाज सीन अ वन सेट व्हिच इज रिलेटेड टू अ लिटिल बिट क्वांट साइड का था, वो मीन मोड मीडियन वाला. एंड आई फाउंड इट कि चलो मीन मोड मीडियन, इतने सारे मैंने कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट तो देखे ही है, तो मीन मोड मीडियन तो समझ में आ गया मुझे क्या होता है. तो मैंने वही सोच के चलो उसे पकड़ लिया, एंड आई पिक द सेट एंड इट टुक मी 15 minutes अराउंड to solve the set. 15 minutes and I solved it. That's it. Then I come to second set. Second set में आते ही वहाँ पे the second set was a really my time wasting set. मतलब तो second set था, उसने around 10 minutes मेरा waste कर दिया, मुझे कुछ भी क्लिक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, रियलिटी. तो ऐसा आई एम नॉट, मैं भी बोल दे रहा हूँ पहले ही द सेशन स्टार्टिंग में ही, मैं कोई गॉड नहीं हूँ भाई एलआरडीआई का, टू बी ऑनेस्ट. बट मैं वो बता सकता हूँ जिससे मैं 99 परसेंटाइल लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में लाते आ रहा हूँ इन एलआरडीआई सेक्शन.
बाकी सेक्शन का मत पूछना, LRD की बात कर रहा हूँ। तो मैं वही स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। नाउ आई लेफ्ट विथ ओनली 10 मिनट्स मोर। ओके, तो मैं अब मेरे पास जो था सिर्फ 10 मिनट्स और बचे थे, एंड इन दिस 10 मिनट आई हैव टू लाइक एटलीस्ट सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस टू एटलीस्ट गेट एन 95+। तो मैंने यहाँ पे टारगेट किया 95+ ही चले जाओ, मैं बहुत है, उससे ज़्यादा तो मैं जा नहीं सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड पिकिंग द क्वेश्चंस विच इज़ माई स्ट्रेटजी, यू विल लर्न इफ़ यू आर देयर विथ मी इन अपकमिंग सेशंस। अगर आप आगे में रहोगे तो आप सीखोगे कि मैं क्या करता हूँ। देन आई जस्ट रैंडमली गो चेक द सेट्स। 2 सेट्स और बचे थे, एक तो बेकार था, वो 10 मिनट बर्बाद किया उसने, अलग बात है। देन आई हैव 2 सेट्स, एंड उन 2 सेट्स में मेरे को हिट एंड ट्रायल मारना था। आई सिंपली अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दोज 2 सेट्स, एंड व्हाट डू यू से, क्या लगता है आपको कि ये 4 क्वेश्चन सही हुए होंगे या नहीं? चारों के चारों सही हो गए, एक तो तुक्का भी था उसमें, एंड आई गॉट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। तो मेरे 9 के 9 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए इन स्लॉट 1 कैट 2023। सो वो मैंने जो सेट्स जो क्वेश्चंस मैंने चूज किए थे वो ऐसे रैंडमली नहीं किए थे, मैंने उसमें बहुत देखा, क्वेश्चन रीड किया, आई रेड द क्वेश्चन एंड आई फाउंड कि यस थोड़ा सा तो यहाँ पे ट्रिक है, मतलब इजीली आंसर आ जा रहा है। तो आपको उस तरह से क्वेश्चन हंट करना है। तो दीज थिंक इफ यू डू इन अ LRDI पोर्शन, आई बेट आप 95+ तो आराम से ला लोगे। 99 तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पॉसिबिलिटी कि मेरा भी ना आए कभी तो। तो ये दीज आर द थिंग यू कैन डू। ओके, अब करना कैसे है, फ्लो कैसे रहेगा आगे। आई बिलीव बहुत से लोगों के जो भी अटेम्प्ट किए तो उनको पता है LRDI वॉज समथिंग क्या ही होता है। लाइक आपने जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, इफ यू एनी ऑफ यू शेयर द एक्सपीरियंस, just raise your hand. I would like to unmute yourself and share your experience, like those who are attempted already a cat. So I know the some name Shubham and Anil, right? Do you want to share the experience? What, or Mayank, do you want to share your experience? Okay, I'll just share my experience. So I too have given CAT attempts 2 times, and in the like both the scenario, I have scored 99 and 98 percentile in the first attempt, and second attempt also same percentile. So DILR section is one of the different kind of section where it can be the one of the scoring section too, and it can the worst part of your CAT in the free parts too. सो द बेसिक थिंग इज कि आपको सेट समझ में अगर आता है वो सेक्शन, जैसे सुमित भैया ने अभी बताया कि अगर आपको समझ में आ जाता है, आप एक सेट सॉल्व कर पाते हो तो सेकंड सेट भी आप सॉल्व कर पाओगे इन दैट केस। और अगर आप एक सेट भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो वहां पे आप कुछ भी कर लो, आप सेकंड सेट भी टच नहीं कर पाओगे और आपका नेक्स्ट सेक्शन भी खराब हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है जिसमें आपको वो 40 मिनट में आपको मिनिमम 1 सेट टारगेट करना पड़ता है। ठीक है, तो और इसका प्रिपरेशन भी एक अलग स्टाइल से होता है। तो वो चीज पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो चीज, और हमेशा आप कितना भी आप चाहो तो आप 100 सेट प्रैक्टिस करके जाओ, 200 सेट प्रैक्टिस करके जाओ, या 300 सेट, आपको वहां पे एक नया केस सिनेरियो मिलेगा। तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप एक नया सेट को उस टाइम फ्रेम में समझ के कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, thank you, Mayank, for sharing your experience. By the way, Mayank, he is joining a IIM this year. Unfortunately, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते IIM जा रहा है IIFT, because there are still IIFT result yet to come, right, Mayank? तो शायद से यस IIFT सुमित चले जी। जाए वो। ओके, तो या गाइस, सो दीज आर द थिंग्स इन LRDI। देखो, प्री रिक्विजिट लेके मत बैठो, मैं यही बोलता हूँ सेशन में। यू आर हियर इन दिस सेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये मान के बैठ जाओ कि मैं अब ये ज्वाइन कर लिया, इस क्लास में ज्वाइन किया, फिर ये सेशन ज्वाइन किया और आई एम सॉल्विंग दिस मटेरियल तो मैं 99+ हो जाऊंगा। एनीथिंग पॉसिबल, इधर यू आर स्कोरिंग 99+, और पॉसिबिलिटी है कि वो भी ना आए। तो सब मान के चलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सोच के चलो कि मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर वेरी मच वेरी गुड परसेंटाइल या पॉसिबिलिटी। अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो अब करना क्या है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी आर राइट नाउ
दैट मैं ज़्यादा बात नहीं, मतलब जून तो आ ही गया समझ लो। ओके, इफ आई एम 10 दिन को अगर हम हटा दें तो हम जून में आ चुके हैं। ओके, जून इज द सीजन, एंड लेट्स से जून के बाद हमारा आएगा जुलाई, जब लोग थोड़े बहुत जागने लगते हैं पढ़ने के लिए। एंड देन उसके बाद जो आता है, यहाँ लोगों के होश उड़ जाते हैं। रीज़न बिहाइंड, अगस्त में आपका आ जाएगा कैट 24 का नोटिफिकेशन। ठीक है, एंड ये जैसे ही आया कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। यार सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग एंड बैड इंग्लिश, गलत हो जाए तो ये जैसे ही आया, आप यू आर इन अ पैनिक मोड। अब क्या, अब क्या, अब क्या। ठीक है, एंड उसके बाद जो पढ़ाई होती है, एक्चुअल पढ़ाई तो वही होती है। तो अभी क्या करना है, यू हैव अ 2 मंथ इन बफर। अगस्त से आप पहले पहले आपके पास 2 मंथ है। ठीक है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू हियर इन दिस प्लेटफॉर्म, आई विल ट्राई टू टेक ऑल द बेसिक काइंड ऑफ थिंग, जितना भी बेसिक पार्ट है वो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे हम कवर कर लें। एंड बाय द जून एंड हमारा बेसिक जो है वो तो हो चुका होगा। अब बेसिक ऐसा कुछ नहीं है हार्डकोर बेसिक, बेसिक इज सिंपल, देयर आर सम काइंड ऑफ सेट्स, दोज आर इम्पॉर्टेंट इनफ, उसके हम बेसिक कर लेंगे, उसके उस वन टाइम गो थ्रू कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मैं भी दिखाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद जुलाई, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन दी, डेली प्रैक्टिस सेशन होगा। ओके, डेली आपको सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारे प्रैक्टिस मटेरियल वी विल प्रोवाइड डेली डोज एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस you can do from your side, like so you can solve pyqs and mocks also. So this should have to be done by July. अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, दिस इज द पैनिक मोड। यहाँ पे आने के बाद 2-4 दिन तो आपके कहाँ चले जाएंगे वो को पता नहीं चलेगा, बिकॉज यू हैव टू फिल अ फॉर्म। एंड फॉर्म फिल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, लाइक किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो सब अरेंज करने में आपका टाइम चला जाएगा कुछ। दैट अज्यूम आई एम अज्यूमिंग 5 days ईयर, जो कि आपका वेस्ट होने वाला है। वो 5 days खत्म भी हो जाए तो अब आपके पास जो बचा है 25 days ईयर, यहाँ पे आपके पास 25 days लेफ्ट। ओके, अगस्त, देन आपका सितंबर, देन अक्टूबर, एंड देन नवंबर, द डी डे। इसी मंथ में आपका रिवीजन होगा। अब फ्लो कैसे रखेंगे हम, एज आई टोल्ड यू, बेसिक बाय द एंड ऑफ द जून वी विल कवर इट हियर। ओके, कुछ पार्ट रह जाएगा तो हम आगे प्रैक्टिस में भी हम सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, देन प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ these are the this should be we should pursued, ऐसे हम आगे जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वुड, मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ना चाहूँगा अगर। एंड बेस्ट थिंग इज आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटेम्प्ट कैट 2024। पता नहीं क्या होगा DLR में, बट होपिंग कि अच्छा ही हो, एंड इस बार भी शायद 99 आ जाए। नाउ अब एक पार्ट है कि चलो ये तो आप करवाओगे, हम क्या करें, हम क्या करें, दिस इज अ मेन थिंग, बिकॉज सिर्फ मैं करवाऊंगा उससे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ मुझे खुद नहीं आता है। ठीक है, मैं खुद नहीं सॉल्व कर पाऊंगा जो चीज़, वो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। बट या एक मजाक कर रहा हूँ गाइस, सॉल्व तो मैं कर लेता हूँ, टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डेली के 2 सेट सॉल्व करने हैं। ओके, यू हैव टू सॉल्व डेली 2 to 3 sets, not two only, 2 to 3 sets, that's it. No matter you are working, no matter you are like a student or what, see DLR में क्या है ना, यू हैव टू बिल्ड योर माइंड, ना कि आपको रटना है या फिर बहुत से सेट सॉल्व कर ले। तो देखो, बहुत सेट सॉल्व करके प्रैक्टिस का फायदा तो मिलेगा ही, बट एग्जॉस्ट नहीं करना अपने माइंड को, हमारे माइंड को ट्रेन करना है, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। ठीक है, सो 2 to 3 सेट्स इज मोर देन इनफ, ट्रेन आवर माइंड, हमें सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना है। एंड उसे डी डे के लिए प्रिपेयर करवाना है कि भाई एटलीस्ट पेपर में भी 2 सेट तो सॉल्व कर ही ले, और 3 सेट भी कर ले इफ डे वॉज योर। ठीक है, तो आपको डेली 2 to 3 सेट्स ही करना है ना। सोर्स ऑफ द सेट्स, डेली डोज, अगर आपने बहुत से डेली डोज क्लासेस फॉलो किए किसी कोचिंग क्लास तो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इवन
वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेली डोज, ठीक है। वंस आवर बेसिक पार्ट फिनिश वी विल स्टार्ट द डेली डोज फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। इसके अलावा PYQs, ठीक है, डेली डोज हो गया आपका, PYQs हो गया, and past year mocks also there. You can find everywhere a past year mocks. And if you are not a kind of person कि भाई ये सब चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे टाइम के साथ चाहिए, तो लाइक आई वॉज अ पर्सन कि मुझे टाइम के साथ सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ सिंपली गो एंड एनरोल इनटू अ मॉक सीरीज एंड स्टार्ट सॉल्विंग अ सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक अ मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट लो आप। अब मॉक टेस्ट कैसे देना है राइट नाउ, नो मैटर यू आर वेयर, आपका 0 पे हो या फिर 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, कहीं पे भी हो, आपको वीकली 1 मॉक तो देना, अभी से स्टार्ट कर देना है। वीकली 1 मॉक, ठीक है, ये आपको स्टार्ट करना है। आप कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आपको ये चीज़ स्टार्ट करना ही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यू कैन फॉलो। 2 से 3 सेट करो डेली का, दैट्स इट, बहुत है भाई, काफ़ी है, सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कर सकते हो करो, इट्स योर चॉइस, बट for a normal people like me, we will solve only 2 sets or 3 sets a day, okay, this should be your daily practice। अब मैं सेट सॉल्व कर रहा हूँ डजेंट मीन कि मैं एकदम बेसिक सा सेट सॉल्व कर रहा हूँ जो हम आज करने वाले हैं, वो सेट सॉल्व कर रहे हो, 2 सेट्स कर रहे हो तो यार मज़ा नहीं है। हम जो बेसिक सेट्स कर रहे हैं बिकॉज टू नो अ बेसिक आइडिया, दोज हु आर लाइक जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, उन्हें पता रहना चाहिए कि LRD सेक्शन होता क्या है, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग विद वेरी बेसिक सेट्स। आपको PYQs लेने हैं या फिर कुछ उस लेवल के सेट सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट मॉडरेट सेट सॉल्व करने हैं, ओके। और इजी भी कर रहे हो तो अच्छा क्वालिटी ऑफ सेट्स रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडम आप कुछ भी ले रहे हैं। दैट्स व्हाई वी विल सजेस्ट यू कैन इधर गो विद PYQs, ठीक है, यू कैन इधर गो विद PYQ, यू कैन इधर गो विद पास्ट ईयर मॉक्स, ठीक है। इसके साथ जाओ अभी के लिए, तो हाल फिलहाल में टिल द जून एंड, एटलीस्ट इतना करो। जुलाई से स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल टेस्ट, 2 सेक्शनल टेस्ट अ वीक एंड 1 मॉक टेस्ट, तो अभी से चालू करना है, दैट्स इट। आई होप यू ऑल आर ऑन अ सेम पेज, ओके। बहुत से चैनल से यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कहीं मत जाके पढ़ो, बहुत चैनल से, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई एम वर्किंग विद प्रेप भी राइट नाउ, बट as I told you, I will definitely answer your questions at the end of the session. Okay, so these are the things you have to do. Okay, अब next one question I found in a chat box, how to analyze a mock। तो जो एज मैंने बोल दिया कि मॉक अभी से देना है तो कैसे एनालाइज करो, सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है, जो भी है जस्ट एक बार मॉक टेस्ट खत्म हो गया, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दे दो, सबसे मेन चीज़ तो ये है, अटेम्प्ट द मॉक, 2-3 घंटे फिर रेस्ट करो, कम विद अगेन आओ वापस, ठीक है, एंड खाना वाना पी के आना। और अब यहाँ पे बैठ के आपको क्या करना है, 1 by 1 स्टार्ट सॉल्विंग ऑल दी सेट्स, ठीक है, सॉल्व ऑल दी सेट्स, दैट्स इट। एक बार सॉल्व कर लिया, कुछ सेट्स अच्छा लगा आपको, कुछ ऐसे न्यू लगा, यूनिक लगा, नाउ व्हेन यू सॉल्व यू विल फाइंड कि आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, या फिर 4 सेट सॉल्व करने में ही नानी याद आ गई मुझे, कम से कम अराउंड 5-6 घंटे लग गए, तो 5-6 घंटे लग गए तो अभी लगेंगे, बट ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि आप बाद में जाके वो टाइम बहुत कम हो गया है। और वॉट यू कैन डू, लाइक द पुअर पीपल लाइक मी, उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ ये, ठीक है। हम जैसे लोगों को क्या करना है, आपको सिंपली जाना है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। अब अगर मैं मॉक अटेम्प्ट करता था, मैं कैसे करता था इन माई प्रिपरेशन डेज, मैं मॉक तो अटेम्प्ट कर लिया, अब मुझे पता है कि मेरे पास 3 दिन तो अब मैं मॉक देने वाला नहीं हूँ, ठीक है, 3 दिन बाद ही मैं कुछ करने वाला हूँ, तो मैं जो सेट्स रहते थे उसको मैं 2 डेज में सॉल्व करता था, लाइक 2 सेट्स टुडे, 2 सेट्स नेक्स्ट डे। अब टुडे में कौन सा, आज में कौन सा करूंगा सेट्स, जो मैंने अटेम्प्ट किया उसको ही आज फिर से सॉल्व करूंगा,
एक तो वो कर सकते हो, दूसरा एक जो मैंने अटेम्प्ट किया वो सॉल्व करूंगा, एक जो नहीं किया वो करूंगा। तो दीज आर द हिट एंड ट्रायल्स आई लाइक टू डू व्हेन आई प्रिपेयर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है आवर टारगेट इज टू सॉल्व 2 to 3 सेट्स डेली, दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज। और ये आपको टिल द कैट एंड तक करते आना है, एंड ट्रस्ट मी रिजल्ट आएगा। इससे ज़्यादा कर लूँगे तो और बढ़िया है, बट कुछ सेंस नहीं बनता अगर आप डेली के 10 सेट्स कर रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं 10 सेट्स करो, भाई 10 सेट मैं कर सकता हूँ, बट अगर सेट्स कैट लेवल हो तो 10 सेट नॉट पॉसिबल। ओके, so this is what a strategy I follow. You can change your strategy if you want. You can see lots of there are toppers, even though we have mentors like Unnat who is joining FMS and Shaksham who is joining IIM Kolkata, maybe FMS also. So they also will share their strategy in their sessions. You can ask them in their session कि आपका क्या strategy था mock analyze करने का and all. This is what my strategy for LRD section, and आई थिंक हमें एलआईडी तक ही रखना चाहिए आज का सेशन। एट दी एंड विल क्लियर योर डाउट कुछ होगा तो ये था। देखिए कैट 23 के कंपैरिजन में क्या था, द लेवल ऑफ द कैट इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ये चीज़ बहुत मतलब समझ जाओ भाई, इस बार भी खतरनाक आ सकता है। तो बी रेडी फॉर द टफेस्ट पेपर। बट एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, ईजी भी कैट ही है। when it come to other exams and CAT, you will find कि CAT was more easier than the other exams. Like CAT में आपको सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ने हैं, that's it. But other में क्या है, आपको जीके पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। CAT में तो ग्रामर भी नहीं पढ़ना है। So that's why I like the CAT examination. Even though apart from this, you will get a lots of colleges who are accepting the CAT examination. तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। Now let's come to the most important topics. अब कुछ लोग बोलेंगे यार इतने तो टॉपिक, इससे ज़्यादा टॉपिक तो मैंने गूगल पे देख लिया, आपने तो इतने से क्यों लेके आए हो। तो यार सॉरी भाई, मुझे तो इतना ही पता है। द फर्स्ट टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बहुत सारे टाइप के अरेंजमेंट हो जाते हैं, बिट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एंड लीनियर अरेंजमेंट हो गया, एंड सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। ओके, सिटिंग और लीनियर सेम ही हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। एंड एक पजल काइंड ऑफ रहता है, तो पजल ऑलरेडी इज हियर। लाइक टेबल बना लिया आपने, 4 लोग को बैठा दिए यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, घर के ऊपर घर के नीचे 4 लोग, घर के ऊपर नीचे जो भी है। तो ऐसे सेट्स जो है वो पजल में आ जाते हैं। यू कैन काउंट इन अरेंजमेंट ऑल्सो और पजल में भी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज GNT। यू विल फाइंड वन सेट फ्रॉम GNT। ये तो दिखता ही है, मतलब GNT का कैसे ना कैसे घुमा फिरा के आपको एक सेट मिल जाएगा। देन वेन डायग्राम मैक्स मीन, दिस इज समथिंग आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट पजल ठीक है कर लेना, GNT वेन डायग्राम, इतना अगर आपने सही से किया हो ना, आपका दिमाग तो खुल जाएगा। दिमाग खुल जाए कि भाई LRDI में करना क्या रहता है, दैट्स इट। मैक्स मीन मतलब यहाँ पे देख, आपने सुना होगा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, मंकी चॉकलेट, जो भी बहुत सारे नाम है अलग अलग, वही जो होता है मैक्स मीन में आ जाता है वो। देन क्वांटिटेटिव LR विच आई जस्ट जो मैंने सॉल्व किया था पेपर में, मैक्स मीन वाला, मीन मोड मीडियन वाला, तो ये हो गया। या फिर कुछ नंबर्स के साथ हो गया तो उसे क्वांटिटेटिव LR कहते हैं। देन वी हैव ग्राफ्स एंड चार्ट्स, जो कि DI का पार्ट है, बट मैंने यहीं पे लिख दिया, डराना नहीं चाहता था, फर्स्ट सेशन था इसलिए शॉर्ट में कर दिया। देन बाइनरी लॉजिक्स, बाइनरी लॉजिक्स मतलब ऐसा हो गया, सबसे इजी एक नंबर देता हूँ मैं, वो ट्रूथ वाला रहता है ना, ट्रूथ, लायर, ऑल्टरनेटर, ठीक है। तो ये सब आ गया बाइनरी लॉजिक्स में। देन वी हैव क्यूब्स एंड क्यूबर्ड्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कैन कम टू कैट, बट कर लेना चाहिए। लास्ट कुछ 6-7 साल पहले क्यूब्स एंड क्यूबर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उतनी इंपॉर्टेंट मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से यही है, ऊपर के जो है क्यूब्स एंड क्यूबर्ड के ऊपर के। दीज आर द टॉपिक्स। अब आप बोलोगे कि यार टॉपिक तो और भी है, आई अग्री, आई एम नॉट सेइंग कि टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत है, बट ट्रस्ट मी, इतना अगर अच्छे से आप कर लिए हो ना, काफ़ी है भाई। 99 क्रॉस करने के लिए काफ़ी है, एंड आई वुड से कि 100 भी आ सकता है, लोगों ने लाया है यही पढ़ के। तो दीज आर द थिंग। इसके अलावा कुछ अगर आपको लगता हो और कुछ है तो यू कैन ऐड इन द चैट बॉक्स। ओके, चलो।
नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो वन मोर थिंग, अपना क्वेश्चन में भी देखा कि टाइम कितना देना चाहिए सेट सॉल्व करने के लिए यार। इनिशियली अभी के लिए तो चलो स्ट्रेटेजी मैंने शेयर नहीं की कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, वो करते हैं अरेंजमेंट में। तो एज आई टोल्ड यू देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। वन इज अ लीनियर, ठीक है। देन वो क्या कहते हैं, सर्कुलर। यार मैं कैसे लिख रहा हूँ, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, तो फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड इज सर्कुलर, एंड थर्ड वन इज वो पजल वाले रहते जो मैंने पजल में लिखा है, वैसे तो पजल अलग से बनाया बट यही सारे रहते। दीज आर द काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट का पार्ट। नाउ वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर फर्स्ट, कितने मिनट में सेट्स होने चाहिए सॉल्व। तो भाई अगर मुझे 30 मिनट लग रहे हैं तो मैं तो 30 मिनट दूंगा। मुझे अगर 20 मिनट लग रहे हैं तो मैं 20 मिनट में कर लूंगा। मयंक अगर 5 मिनट में कर रहा है सेट, तो उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अभी के लिए टाइमिंग मत देखो, कितने मिनट में करूंगा, कितना लगेगा, कितना नहीं। अभी जस्ट गो विद द फ्लो। एक सेट कर रहे हो अगर आप, 20 से 25 मिनट भी लग रहा है और मे बी से 30 मिनट्स भी लग रहा है, लगने दो, नो इशू। कोई इशू नहीं है भाई, इतना भी कैड आने में टाइम है। हम थोड़ा सा लेट है लेकिन ज़्यादा लेट भी नहीं है। 30 मिनट भी लग रहा है ना अभी में, लगने दो। किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, लगने दे भाई। 1 घंटा लग रहा है, 2 सेट कर, 2 आवर में ख़त्म कर, ठीक है। 2 सेट्स इन 2 आवर ख़त्म करो, दैट्स इट। अभी प्रोसेस के साथ जाओ, गो विद द फ्लो, सब बढ़िया हो जाएगा। एट दी एंड जाके ये कम हो जाएगा। जो आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस चालू करोगे अपने आप ये चीज़ कम हो जाएगी। यू कैन सी कि आप फर्स्ट 2-3 मॉक में सिर्फ एक सेट सॉल्व कर पाओगे, बट एट दी एंड बिफोर अ कैड आप देखना आप 2 से ज़्यादा सेट सॉल्व इजीली कर पाओगे। तो गो विद द फ्लो, अभी टाइम बाउंड मत लाओ, ठीक है। टाइम बाउंड सिर्फ वो सेक्शनल अटेम्प्ट करोगे तो अपने आप मिल जाएगा, टाइम बाउंड वहाँ पे रहेगा, दैट्स इट। तो अभी तो गो विद द फ्लो। सो एज आई टोल्ड यू दीज आर द लीनियर सर्कुलर पजल अरेंजमेंट। ओके, अब इसमें भी कुछ रहता है लाइक अब यहाँ पे अगर आप डिटेल में जाओगे नीचे देखो, आई हैव कम विद अ वेरी इजी सेट टुडे, क्योंकि मैं फर्स्ट सेशन था, मैं नहीं चाहता कि सब डर जाए पहले ही सेशन में बोले यार ये क्या करवा दिया। तो मैं बहुत ईजी सा सेट लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये सेट मैं सिर्फ बताने के लिए लाया हूँ, समझाने के लिए कि देखो कभी ऐसा भी क्वेश्चंस आते थे जो अब नहीं आते हैं, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन आते थे बट अभी नहीं आते, अब ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ जाते हैं। और आईएफटी में भी आता था बट नहीं आता है। यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ सेट्स इन ओमेट्स ऑल्सो, लाइक स्नैप, सी मैट एंड बाकी के अदर एग्जाम, सीईटी एंड ऑल। बट कैट में भी तो हम ये कर क्यों रहे, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कर क्यों रहे भाई, तो पागल है जो ये लेके आया। हाँ भाई थोड़ा सा हूँ, ये लेके इसलिए आया क्योंकि आपको पता रहे कि वी शुड गो विद द बेसिक। एक्चुअली में एलआर होता क्या, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। जो नया है बंदा, लाइक मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता मुझे तो समझ में नहीं आता कि व्हाट इज दिस नॉर्थ फेसिंग, में तो यार स्ट्रेट लाइन क्या करना क्या है, वो सब चीज समझा देते हैं। दीज आर द सेट्स, वेरी बेसिक सेट्स। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस सेट्स, आई एम श्योर कि भाई आप कैट वाले सेट्स बना लोगे। बेसिक आपका क्लियर है थोड़ा बहुत तो बिफोर स्टार्ट विद दिस, अगर ये कर लेते चलो, लाइक अगर यहाँ पे मेंशन है कि कोई आपके लेफ्ट में है, लेट्स से अगर आपके पास 3 लोग हैं, 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो ए बी सी नाम दे देते चलो, ए बी सी डी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है ना वो लेफ्ट में है किसके, बी के। ऑल्सो ऊपर होता है नॉर्थ, जिसे नहीं पता हो, नीचे होता है साउथ, ठीक है। ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। तो अगर नहीं याद हो तो मैं अच्छे से याद करवाता हूँ। नॉर्थ, ऊपर में चाइना है, चाइना नॉर्थ में है, ठीक है। और चाइना नहीं तो हमारा नॉर्थ तो याद ही है भाई, हिमालय सब ऊपर ही है तो ऊपर नॉर्थ हो जाता है। साउथ में केरला हो गया, हैदराबाद, जो भी है जितने भी सिटीज़ है, ठीक है, तमिलनाडु, ये सभी साउथ में है, ये तो पता चल जाएगा। ईस्ट, ईस्ट कैसे याद करना, ईस्ट ऐसे याद कर लो कि यार आपके बाजू में है कौन है भाई, ईस्ट के लिए क्या बताओ, ईस्ट के लिए क्या बताओ,
छोड़ो यार, ईस्ट के लिए समझ लो, वेस्ट बताता हूँ तो ईस्ट समझ जाएगा अपने आप ही। वेस्ट, वेस्ट कहाँ पे यार? वेस्ट सिंपल है, अमेरिका जिधर है वहाँ वेस्ट है, या फिर पाकिस्तान जो है वेस्ट में है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, पाकिस्तान इज इन और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग को ये भी डाउट रहता है कि ये हो क्या रहा है, दैट्स आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हियर। तो ये तो हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जब भी हम कभी भी ऐसे अरेंजमेंट सेट्स करते हैं, अगर किसी को बैठाना है, मोस्टली आई वुड प्रेफर टू टेक देम अ नॉर्थ। ठीक है, एंड क्वेश्चन में मेंशन था दे आर फेसिंग नॉर्थ और साउथ एंड ऑल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है। तो अगर कोई कह रहा है कि ए जो है वो लेफ्ट में है डी के, सिंपली ए लेफ्ट में डी के मतलब ए इज द, ओके, ए लेफ्ट में डी के, तो अगर मैं कह रहा है तो ए यहाँ पे है, तो ए कहाँ पे है? डी के लेफ्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नॉर्थ में बैठा हूँ, आप भी बैठो सामने देखो, आपका लेफ्ट कहाँ पे है? दिस इज लेफ्ट। इफ आई एम सीइंग, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरा लेफ्ट तो ये है, तो यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। तो ए लेफ्ट में किसके? डी के। अगर यहाँ पे कहा गया है ए इज द सेकंड लेफ्ट फ्रॉम डी, ओके, और फिर सेकंड लेफ्ट में, तो सिंपल, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ए कहाँ पे? सेकंड लेफ्ट में डी के। सिमिलरली अगर मुझे कहा गया है कि सी इज द फोर्थ थर्ड राइट ऑफ ए, अगर मुझे कोई कह रहा है सी इज द थर्ड राइट ऑफ ए, इसका मतलब ए के राइट में थर्ड पे जो है वो है सी है, तो यहाँ पे मेरा सी आ गया। ये हो गया सेकंड, तो यहाँ जो बचा है वो यहाँ पे आ गया बी। तो एक सी कहाँ पे? थर्ड राइट ऑफ ए। सो दीज आर द बेसिक, आई होप इतना क्लियर होगा। सेम फॉर लेफ्ट राइट, जो भी है कर लेना गाइज। ये तो बहुत, अगर यहाँ पे डाउट हो तो डू लेट मी नो, और कुछ हो तो पूछ लो। आई होप ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ कुछ नहीं है ना? कुछ हो तो पूछ लेना भाई। चलो अगर क्लियर है तो सेट्स पे आते हैं, ये वाले सेट पे आते हैं, क्या ये कह रहा है। बस इतना ही जानना था इस सेट के लिए। एंड दिस इज द टिपिकल एल आर सेट, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर एजुकेटर पढ़ाते हैं। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जाके पढ़ो भी, अभी टाइम है। तो यहाँ पे इफ यू वी रीड द सेट, इट इज मेंशन हियर, सेवन फ्रेंड्स पी क्यू आर, PQRSTUV are standing in a straight line facing north but not necessarily in same order। मतलब ये कह रहा है वो कि ये जो PQRSTUV है, ये सात दोस्त है, वो नॉर्थ फेस कर रहे, इट मीन्स लेट्स से सेवन पोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7, दे आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं किसी को तो फेसिंग नॉर्थ, ओके, एंड दे आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। व्हाई वी राइट दिस काइंड ऑफ थिंग? बिकॉज कुछ लोग पी क्यू आर एस टी को ऐसे ही बैठा देते हैं, तो इसलिए बता दिया कि यार पी क्यू आर एस टी यू भी डायरेक्ट नहीं बैठे है, वो बैठे हैं अलग तरीके से, बट मैंने नेमिंग ऐसा किया है। उसके बाद यू कैन सी यू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, यू क्या कह रहा है? बहुत ईजी सा है यार, सेकेंड। अब देखो ये लेफ्ट मैंने अभी बताया था जस्ट, इफ आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, मेरा लेफ्ट कौन सा होगा? ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो ये हो गया लेफ्ट एंड, ये हो गया मेरा राइट एंड। ओके, तो लेट्स से इसे एल लिख दो, इसे आर लिख दो फॉर नाउ। ओके, सो यू स्टैंड्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, मतलब ये लेफ्ट एंड है, इससे सेकेंड, मतलब ये इस पोजिशन पे कहाँ है? यू है। ओके, ओनली टू पर्सन स्टैंड बिटवीन यू एंड टी। अब दो बंदे यू और टी के बीच में हैं, तो क्या मेरा टी यहाँ पे हो सकता है? बेसिक लॉजिक, अगर मेरा टी यहाँ पे आ गया, तो क्या दो लोग इनके बीच में आ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो सिंपली टी कहाँ पे हो सकता है? अगर दो लोग बीच में आ रहे तो टी मेरा यहाँ पे आएगा, राइट? नाउ दिस स्टेटमेंट टेकन केयर, दिस स्टेटमेंट टेकन केयर, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड आर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एक बंदा पी और आर के बीच में है, तो शायद ऐसे हो सकता है पी और आर खड़े, या फिर ऐसे भी हो सकता है आर हो देन पी हो, बहुत पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो
लेट इट बी, अभी के लिए इसे रहने दो। वी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। नाउ दिस इज द केस, वी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो चलो इसको पुट कर देते हैं यार, क्योंकि आर आर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स कम हियर एंड लेट्स मेक अ हिट एंड ट्रायल सम। नाउ सी हियर, पी एंड आर की बात हो रही है, मैं कहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं पी को यहाँ रख दूँ तो मेरा आर यहाँ हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा, अगर मैं पी यहाँ रखूँ, आर यहाँ रखूँ, तो पी मेरा यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो रूल आउट हो गया ये। ओके, ये केस रूल आउट हो गया। तो इवन दो यहाँ पे अगर मैं पी रखूँ यहाँ पे आर, ये भी पॉसिबल नहीं है। दीज आर नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो ये दो केस तो गया, मतलब मेरे यहाँ पे तो पी और आर नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। ओके, तो यहाँ पे मेरा पी और आर नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। दूसरा पोजिशन क्या है, मेरा पी यहाँ पे हो सकता है, इधर पी और इधर आर, और सिमिलरली इधर हो सकता है मेरा आर और पी। दीज आर द टू पॉसिबिलिटी विच आई एम लाइक फाइंडिंग राइट नाउ, मुझे यही मिल रहा है। तो अब यहाँ पे नाउ, ये तो हमने सारे पॉसिबिलिटीज लिख लिए। अब हमारा पॉइंट जो है ये वाला, वी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। दिस इज द गेम मेकर और ब्रेकर, दोनों हो सकता है, बना भी देगा या फिर बिगाड़ भी देगा, समझ में नहीं आया क्या होगा। वी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, वी स्टैंड हो रहा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर आर यहाँ है, आर का लेफ्ट तो ये हो गया, इसके लेफ्ट में मतलब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होगा, समवन इज हियर, राइट। सेकंड, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को देखूँ, यहाँ अगर आर है तो लेफ्ट में तो इसका कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे आर तो पॉसिबल है ही नहीं, रिमूव इट, हटाओ इसको, आर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ आर यहाँ है और मैं थर्ड टू द लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट में तो थर्ड हो ही नहीं पाएगा, तो आर यहाँ पे भी नहीं होगा। आर यहाँ भी नहीं है, आर यहाँ भी नहीं है, तो पी तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा। तो दीज आर द केस रूल्ड आउट। सो आई लेफ्ट विथ ओनली वन केस, दिस इज माई पी, दिस इज माई आर, एंड थर्ड टू द लेफ्ट हियर इज माई वी, दैट्स इट। अब क्या बोल रहा है, नीदर आर नॉर यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ना तो आर ना तो यू। ओके, क्या ब्लेंडर कर दिया मैंने। ओके, या आई फॉरगेट टू ऐड वन मोर पॉसिबिलिटी। गाइस, ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पे आर हो, यहाँ पे पी हो, एंड देन 1 2 3 यहाँ पे हमारा वी हो, राइट, पॉसिबल है। और जो केस मैं अभी पहले बनाया था वो ये था, ठीक है। दिस इज हियर, हियर इज माई यू, हियर इज माई पी, हियर इज माई टी, और मैं यहाँ पे वी डाल रहा हूँ। बट सी दिस, इन बोथ केसेस अगर मैं एस को कहीं पे रख सकता हूँ, तो या तो यहाँ रख सकता हूँ या तो यहाँ रख सकता हूँ, बट दोनों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये मेंशन बोल रहा है कि ना तो आर के बाजू में और ना तो यू के बाजू में हमारा एस आ सकता है। तो ये केस तो ऐसे ही रूल आउट हो जा रहा है। अब जो ये केस बचा यहाँ पे, ना मैं यू के पास रख सकता हूँ ना आर के पास, ऑब्वियसली एस विल नॉट कम हियर, तो एस मेरा यहाँ जाएगा, एंड हियर द लेफ्ट वन क्या बचा है, क्यू। सो दिस इज माई सेट। अब मैंने इसमें क्वेश्चंस नहीं लाया, बिकॉज बहुत बेसिक सा सेट है, मैंने समझाने की कोशिश की, अपना बेस्ट दिया, पता नहीं आपको समझा या नहीं। नहीं समझा तो पूछ लेना गाइस। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक सेट, एंड जस्ट फॉर बिल्ड योर माइंड। जब हम बेसिक स्टार्ट करते, जब हम बचपन में भी स्टार्ट किए थे मैथ्स, तो हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 से, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी LRDI में भी, टू बी ऑनेस्ट, देर इज नो स्टार्ट, देर इज नो एंड, डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, आप कितना बेटर लॉजिकली सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्टार्ट क्या है, एंड क्या है। एंड तो नहीं है, स्टार्ट डिपेंड करता है। तो बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे लिए तो यही बेसिक है, आपका पता नहीं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यहाँ तक, तो पूछ लो गाइस, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम सीइंग द चैट्स राइट नाउ। इट इज़ अ वेरी बेसिक, आई नो। अगर कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार क्या पागल बना रही है, यार सॉरी, 19 मैंने तो ऐसे ही प्रिपरेशन किया था गाइस, तो बस वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको भी। ओके, सो दीज आर द वेरी बेसिक, एज यू नो।
अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आई बिलीव सेकेंड सेट भी बहुत ईजी सा है. ट्राई टू सॉल्व इट. आई विल गिव यू 5 minutes. काफ़ी है ना, ज़्यादा लगेगा तो भी ले लो. तो ट्राई टू सॉल्व इट. सो दिस इज द सेट. ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं. ये है सेट. होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ट्राई टू सॉल्व इट. Okay guys, so let's start solving the sets. तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था. ट्रिकी मीन्स जो पहला वाला तो बहुत ज़्यादा इजी था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा. एंड हियर यू कैन सी वी हैव 8 participants like K, P, T, C and D, L, J. ठीक है, तो या तो आप ऐसे लाइन बना के बैठा दो, इन सबको एक लाइन में बैठा लो. एक तो वो कर सकते हो. अदर थिंग यू कैन डू इज सिंपली लाइक इधर मेक 8 lines एंड सिट, उनको बैठा दो. तो ये थोड़ा सा इसमें नहीं बैठ फिट होगा, बिकॉज द कंडीशन इज नॉट डायरेक्टली गिवन. डायरेक्टली है मतलब एकदम वैसा नहीं है जैसा आप सोच सकते हो. लेट्स गो विथ अ फ्लो, जैसा हम बोलते हैं LRD में फ्लो के साथ जाना चाहिए. तो what they are saying, but not necessarily in the same order. Only n is between C and D. Remember, only n. मतलब ये अगर मेरा C है, यहाँ मेरा D है, तो इनके बीच में सिर्फ n होगा और कोई नहीं होगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इफ माई D इज हियर एंड C इज हियर, n मेरा होगा इनके बीच में और कोई नहीं आएगा इनके बीच में. Then again, only L is between D and J. Now what this point is saying, D और J के बीच में L है. दिस इज वॉट इट सेइंग. तो फर्स्ट कंडीशन के अगर अकॉर्डिंग जाए हम, तो यहाँ पे मेरा डी है तो यहाँ पे एल आ जाएगा एंड दिस इज माई जे. सिमिलरली हियर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा और यहाँ पे मेरा जे. ओके, आई होप इतना क्लियर होगा मैंने कैसे ले गया. नाउ इफ वी गो अहेड, ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. दिस पॉइंट इज डन. ओके, दिस पॉइंट इज डन. टी एंड के आर पीज नेबर. टी और जो के है वो पी के नेबर है. हाउ इट इज पॉसिबल? टी और के दोनों पी के नेबर है. इट मीन्स ऐसा होगा कि टी पी के हो सकता है या फिर के पी टी. दीज आर द टू पॉसिबिलिटी विच आई हैव, राइट. तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. अगेन, नीदर टी नॉर सी इज एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. ओके, ना तो टी ना तो सी कोई भी एक्सट्रीम एंड में नहीं होंगे रो के. ओके, नोट कर लेते इसे. जे इज टू द राइट ऑफ टी बट नॉट नेसेसरली इमीडिएट राइट. इमीडिएट राइट नहीं है, मतलब टी के राइट में होगा. नाउ टी का राइट क्या है? दिस दिस इज टी इज राइट. यहाँ पे भी टी का जी जे का राइट क्या है? दिस इज जे इज राइट. ओके, सॉरी माय बैड. जे इज अ राइट ऑफ टी. सॉरी सॉरी, टी के राइट में तो समवेयर इज टी. टी के राइट में जे होगा. तो टी का राइट, इस केस में टी का राइट कहाँ पे आ सकता है? टी मेरा यहाँ होगा तभी इसका राइट यहाँ पे होगा, राइट. सिमिलरली हियर ऑल्सो, इफ माई टी इज हियर देन टी का राइट में जे हो सकता है. ओके, तो एज ऑल्सो सेड, नॉट इमीडिएट राइट. ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि इमीडिएट राइट नहीं है. बट अगर इस कंडीशन में देखें तो इमीडिएट राइट नहीं बनाना है, तो यहाँ पे गैप दे के मुझे यहाँ पे टी को रखना पड़ेगा. ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है. नाउ इफ अगर टी यहाँ पे है तो मेरा पी एंड के भी तो कहीं ना कहीं आएगा. हियर इज माई पी, इज माई पी एंड हियर इज माई के. अब क्या बचा है? सब फिट हो गया आई थिंक. नाउ सी इन दिस केस व्हाट आई एम गेटिंग, टी के इमीडिएटली जे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए कोई बचा ही नहीं है, राइट. बट हियर ऑल्सो, लेट्स कंप्लीट दिस वन ऑल्सो. लाइक या टी के राइट में अब वेर इज द पॉइंट, कहाँ गया? या टी के इज आर नेबर ऑफ पी. तो इसके थ्रू अगर जाए तो ये कंडीशन बन रहा है विच इज
P K। ठीक है, सारे बैठा दिए हमने सबको कायदे से। नाउ सी, वी आर लाइक फॉलोइंग ऑल द कंडीशन और नॉट। तो चलो उसे देख लेते हैं। टी के इमीडिएट में जे नहीं है। ओके, फॉलोइंग दिस कंडीशन। लास्ट वाला तो फॉलो हो रहा है। टी और सी के बी, टी और सी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, तो टी एक्सट्रीम एंड में नहीं है, हमारा एक्सट्रीम एंड में के है और जे है। यस, दिस इज फॉलोइंग बोथ कंडीशन। बट यहाँ देखो, के है बट यहाँ पे सी है, तो इस कारण ये रूल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इफ वी गो लाइक, बाकी तो फॉलो कर ही रहा है, विल सी। एन इज द बिटवीन सी एंड डी, यस। एल इज द बिटवीन डी एंड जे, या दैट्स इट, परफेक्टली फॉलोइंग। तो ये था मेरा सेट, एंड आई होप जो भी आंसर अब इससे बन रहा है, चलो देख लेते क्या था। तो समवन आज टेक्स्ट में किसी ने बोला था सेकंड। तो हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर्स? सो टी एन सी आर नेबर्स, यस। और कोई है क्या? या टी एन सी आर नेबर्स, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो देख लो गाइस कौन सा ट्रू है, क्या लगता है? एन इज द नेबर ऑफ डी। चलो यहाँ लिख लेते क्या था आंसर। तो के पी टी सी एंड डी एल जे। ओके, सो एंड इज ऑन द, देख लेना यार, इतना क्या ही है। आई होप इट इज क्लियर। द मेन पर्पज इज यू नो कि ये सेट्स अगर आ गए गलती से, जो कि नहीं आएंगे, बट या बेसिक बिल्ड करने के लिए आपको सेट सॉल्व करना जरूरी है, टू गेट नो आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली एल आर इज। एंड आई होप कि आपको ये अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल टेक डायरेक्टली कैट सेट्स। मैं ऐसे, ये पहला सेशन था, दैट्स व्हाई आई टुक सम इजियर सेट्स कि चलो इजी आना चाहिए। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द कैट सेट्स, जो भी कैट सेट्स है विच आर रिलेटेड टू आर टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कैट सेट्स है वो सारे सेट्स हम सॉल्व करेंगे इन अपकमिंग डेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दो सेट्स, व्हेन यू आर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रैंडम सेट्स, देन हम सारे मॉक सीरीज के जो भी सेट्स रहते हैं अवेलेबल, एंड दो सेट्स वी आर क्रिएटेड, वो सारे सेट्स हम लेके आएंगे। सो दिस इज व्हाट द टुडे सेशन इज। बहुत बेसिक सा सेशन था, जस्ट टू नो यू, इंट्रोड्यूस द एल आर डी आई एज मेंशन इन द सेशन। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के साथ कुछ बेसिक्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टुडे सेशन इज। Apart from this, now it's a time for Q&A. But before we start Q&A, I would like to introduce something. Like this is a prep buddy. It is introduced by a prep B. Here, what we are providing to you guys, like as we also know, सब कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके पास मटेरियल तो बहुत है। तो कैट प्रिपरेशन तो पूरा हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर नथिंग वी आर चार्जिंग एनीथिंग एल्स। ओके, ये पूरा आपको फ्री में मिलेगा, सी दिस। बट apart from this, if you want personalized mentorship, you can enroll into our basic plan, standard plan और premium plan. अब यहाँ पे कौन मेंटर करेगा? तो जो भी हमारे टॉप स्कोरर्स थे, टॉप 20 स्कूल में ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं, कैट मेंटर्स है, लाइक Mayank is also there, he is also going to guide some of you. Okay, we have Unnat, we have Saksham, who are going to join FMS, and they are scored a stellar percentile of 99.96. Like जब हम बात करते हैं उन्नत की 99.96, and then Saksham who scored 99 point around 6 something, I don't know exact percentile. Then we have other mentors like Mayank who scored 98 percentile. We have Satya who scored a 98 percentile in a CAD and 99 percentile around in ZAT. So this is what we have mentors. So these all are going to guide you. Even though we have Anuradha who scored 99.6 something. Okay, and she is joining IIM Kolkata. These all are the peoples. Those who are joining top B school will going to guide you personalized mentorship. इसमें क्या होगा? Simply आपको they will going to sit with you and prepare your next 15-day plan. Let's assume today is a Sunday and it is your first mentorship. They will see your profile, see your background, and accordingly they will like going to suggest you your preparation plan, and they will make all your preparation plan. चलो भाई अब 15 दिन आपको क्या करना है, किस तरीके से परस्यू करना है, all this thing going to guide here, and they will going to schedule your tasks
कि आपको करना क्या क्या है. Apart from this, if you are enrolling standard and premium plan, you will get a 69 series booklet, 69 series master class access, जो कि यही टॉपर लोग अरेंज करेंगे, यही लोग करवाने वाले हैं. नॉट आए जो मैं करवा रहा हूँ सब फ्री में करवा रहा हूँ सीरीज. कितना अच्छा हूँ मैं. ओके. Then apart from this, there are something CV profile review, rewards, live project opportunity, internship opportunity, and some discounts also on our GDPI course and other courses. So these are all the things you will get in our website. You can simply visit prepbee.in. आप simply prepbee.in पे चले जाओ. ठीक है, आपको ये सारी चीज मिल जाएंगे. So this is all about the thing is, and as they're going to take a Q&A, so those who are watching recording, अगर आपको Q&A में participate करना है, simply come and join our live classes. And this is the end of the session. So thank you for joining the session. आपको हमारे कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. You can check out the link. Okay, so signing off. Peace.